माननीय सभासदों, माननीय उपसभापति जी। Now, papers to be laid on the table. Papers to be laid on the table. Sri Upendra Kushwaha. On behalf of my colleague Shri Upendra Kushwaha, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against his name at serial number 1 in today's list of business. Sri P. Radhakrishnan. I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 2 in today's list of business. Now, Professor Dr. M. Ramshankar Katharia. Sir, on behalf of my colleague Shri Ramshankar Katharia, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against his name at serial number 3 in today's list of business. Okay. सर बहुत विनम्रता से मुझे एक बात I'll call you. He wanted to. मुझे बहुत विनम्रता से एक बात कहनी है। पिछले हफ्ते इंश्योरेंस की बहस चल रही थी, तो शरद यादव जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ सांसद हैं। उन्होंने सादे रंग को लेकर एक टिप्पणी की और उसके बाद दक्षिण भारतीय महिलाओं के बारे में एक टिप्पणी की। उस टिप्पणी में मुझे भी कई जगह दिखाया गया कि मैं चुप रहा। मैं उनके इन विचारों से अपने को बिल्कुल असहमत करता हूं। अच्छा, नो प्लीज, प्लीज, मैं अपनी बात कह रहा हूं। प्लीज, नो प्लीज लिसन। I want to listen to the minister. If the minister wants to say something, I want to listen. Point of view. This issue is very serious. Now, Tyagi ji, I allowed the minister. He wanted to say something. I allowed the minister. He's a cabinet minister. I allowed him. And I completely dissociate. I completely disapprove of the comment. All of us must respect the women, their dignity, and I will appeal to Sharad Yadav ji. It is a personal explanation. Withdraw this comment. No, it is a personal explanation. Yadav ji, to kindly withdraw this comment. Sharad Yadav ji इसको withdraw करेंगे तो उनका कद बड़ा होगा. That is not the issue. I allow you as a personal explanation. That's okay. That's only a personal explanation. Yeah. Now, Sri Honorable LOP. Honorable LOP. It's only a personal explanation you did. See, only a personal explanation, as far as I understand. Yeah. Okay. कोई आरोप नहीं है? अच्छा, हाँ. में जो बात कही है, मैं चाहता हूँ वो सामने आ जाए। यानी क्या बात कही? कौन सी बात कही? फिर से इनका कहना है कि ना छोड़ो, ना कैसे त्यागी जी, I am not allowing you. शरद जी can say. बिल्कुल गलत। मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में सांवरी महिलाओं का संख्या ज्यादा है। दुनिया में सांवरी जो लोग हैं, उनका संख्या ज्यादा है। और उसके बारे में मैं दुनिया की किसी ताकत से बहस करने को तैयार हूँ। और ये बाहर जिस तरह का और भीतर ये 2-2 मिनट पे नारी के बात संस्कृति के हक में हमें Any comment should be made about anything No, about no, women please. which is No, please. in any No, way. I am not allowing a discussion on this. मंत्री लेकर के I am not allowing a discussion on this. No discussion on this. I am not allowing a discussion on this. ये आप क्या है? No discussion. शरद जी, कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है। मेरा क्या है? The color of the skin of any woman in this country, I appeal to you. Don't do this. अरे उनको बुलाओ, एक्सपेंड किया गया है। I appeal through you to the honorable gentleman. Do not make comments about the color of any woman's skin. My request is, sir, you are a senior member of the House. There is a very wrong message going to the rest of the country. I appeal to you, please do not make comments about the color of any woman's skin in this country. Please. Okay, now, don't do this, Sharad. no need of discussion over this. ये आपसे मेरा आग्रह है, बड़े हैं उम्र में, आप स्मृति जी बैठिए, शरद जी, no need of discussion because the chair got gone through the records and जो एक्सपेंड करना है एक्सपेंड किया है। हम जो है वो लोहिया से लेकर गांधी से लेकर मेरे पास सारा रिकॉर्ड है जो महिलाओं के बारे में बोला गया है। सांवली महिलाओं के बारे में कितना संघर्ष किया गया है। आपसे आग्रह है, लोहिया जी और गांधी जी का नाम लेकर महिलाओं पर टिप्पणी मत करें। ये ठीक है।
level. I am not allowing a discussion. आप बैठिए, all of you, स्मृति जी बैठिए, कनिमोळी जी बैठ. I am not allowing a discussion on this. See, बैठिए, शरद जी बैठिए, बैठ. I am not allowing a discussion. बैठिए. Let us not fight over this. No discussion. White complexion or dark complexion, all the same. All the same. No need of fight over that. Please. No discussion की जरूरत नहीं. Now Sri Ghulam Nabi Azad. Sir, Now Ghulam Nabi Azad. sir, on this subject also. Sri Ghulam Nabi Azad. Sir, Derek on O'Brien, this sit down. subject also, Derek O'Brien, don't the do more this. you discuss it, Derek becomes O'Brien, more don't do this. complicated. Don't do this. बैठिए. Sri Ghulam Nabi No, Azad. no, अरे, ये कहाँ जा रहा है भाई? अब क्यों मैं उनके I am बारे में- saying it cannot be discussed. That's what I am saying. I am not आप वाले allowed बता रहे हो। discussion on आप this. वाला ही उठा रहे Sri Ghulam Nabi Azad. Sir, I am not allowing a discussion on this matter which has been raised here. Now, white or dark color, it is all the same. I have no problem with that. So please that. Sir, my submission is, insofar as this subject is concerned, this should be closed No, here. no discussion on The that. more we discuss, the more No it will be discussion on that. complicated. More we You come to your subject, not Yeah, this subject. Sir, sir, ये फिर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। शरद जी छोड़ो. शरद जी छोड़ो. कुछ नहीं शरद जी. शरद जी प्लीज. के लोग हैं उनको चुनौती शरद जी. देता हूं. इसको नोटिस करा. शरद जी, I am not allowing a जो भी discussion. बहस हो जाएगी उसमें मैं तैयार हूं. I am not allowing a discussion. I'm right. ये No need. रंगभेद की इतनी बड़ी लड़ाई हुई है. इब्राहिम लिंकन और आपके मार्टिन लूथर किंग. शरद जी भाई. शरद जी आप बैठिए. शरद जी बस. शरद जी आप बैठिए. इसके बारे में डिस्कशन नाउ I am not allowing. इसके बारे में डिस्कशन का अनुमति नहीं है. No discussion on this. I have not allowed a discussion on this. No more on that subject. No more on that subject. Sri Ghulam Nabi Azad. Not on that subject. Ghulam Nabi Azad has given 267 notice on some other subject. I am only allowing that. सर, डिप्टी चेयरमैन साहब, मैंने और मेरे साथियों ने 267 में सस्पेंशन ऑफ बिजनेस के और हमारे साथियों ने हमारे साथियों ने सस्पेंशन ऑफ बिजनेस आवर के लिए नोटिस दिया है. मुझे एक विशेष सवाल पूछना है कि इस सरकार से 2 मार्च 2015 को श्री राहुल गांधी के जो ऑफिशियल निवास No, please. राहुल गांधी No, please. I have allowed no. श्री I have allowed LOP. Please don't comment. I have allowed. Please. भाई Please. अगर आपका इसमें दोष नहीं है तो फिर क्यों आप बुलाते हैं? उसका मतलब है कि कहीं न कहीं आप इसमें शामिल हैं. श्री राहुल गांधी के ऑफिस निवास पर 12 तुगलक लेन पे एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर दिल्ली स्पेशल ब्रांच का गया एक प्रोफार्मा लेकर जो मेरे साथ हैं, और ये प्रोफार्मा मैंने पहले 35 साल पहले मैं भी मेंबर पार्लियामेंट बना था और 35 सालों में कई मंत्रालयों में रहा और तकरीबन जब से पंजाब का मैं इंचार्ज था 86 में, तब से लेकर Z और Z+ कैटेगरी में रहा. मैंने तो इस प्रोफार्मा की कभी शक्ल नहीं दिखी जो आज बताया जाता है कि ये प्रोटेक्टीज के लिए है. और जो ये प्रोफार्मा मेरी समझ में नहीं आता कि जो Z+ कैटेगरी का
और एसपीजी प्रोटेक्टी हो, उसको अचानक इतने साल के बाद श्री राहुल गांधी कोई आज से एसपीजी प्रोटेक्टी नहीं है, जब उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे तब से आज तक एसपीजी प्रोटेक्टी है। तब तक किसी पुलिस वाले ने, दिल्ली के पुलिस ने, स्पेशल ब्रांच ने ये जरूरत महसूस नहीं की कि ये प्रोफार्मा लेके जाएं, उनका रंग कैसा है, उनके बाल कैसे हैं, वो कपड़े कैसे पहनते हैं, उनके जूते का साइज क्या है। मुझे नहीं समझ आती कि जूते का साइज से पॉलिटिशियन के और प्रोटेक्टी का सवाल कहां पैदा होता है। उसके फोन नंबर क्या है, उनकी हैबिट्स क्या हैं, उनकी खाते पीते क्या हैं, किससे मिलते हैं, उनके जो दोस्त हैं, सहयोगी हैं, उनके जो एसोसिएट्स हैं, उनके एड्स हैं, उनके टेलीफोन नंबर्स क्या हैं। सर, ये मेरी समझ में नहीं आता। और इस तरह का प्रोफार्मा भारत की डेमोक्रेसी के लिए, आज मैं देखता हूं कि कई पेपरों में आ रहा है 300, 400, 500, 600 लोग इस लिस्ट में हैं। सर, मैं बताना चाहता हूं कि 14 तारीख को 2 और सीनियर ऑफिसर्स, एडिशनल डीसीपी जितिन नरवाल और एसीपी मिस्टर अनीश राय फिर उनके रेजिडेंस पे गए और इस दफा ये 2 सीनियर ऑफिसर्स ने उनके जो सहयोगी हैं, उनके जो एड्स, उनके बारे में जानकारी शुरू की। हमारी समझ में नहीं आता सर। मैं यहां लीडर ऑफ द हाउस मौजूद हैं, कम्युनिकेशन मिनिस्टर मौजूद हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मौजूद हैं, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट मिनिस्टर मौजूद हैं और दूसरे मिनिस्टर मौजूद हैं। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या इस तरह की इंक्वायरी श्री राहुल गांधी हो या और पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हो, हमारी पार्टी के या यहां जो बैठे हुए हैं या उस सदन में जो बैठे हुए हैं, इस तरह की जासूसी करना, क्या इस तरह की जासूसी करके ये हुकूमत पॉलिटिकल पार्टीज को डराना, धमकाना और दबाव डालना चाहती है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज अपनी आवाज उठाएंगे, चाहे सदन के अंदर या सदन के बाहर, तो सरकार, तो केंद्रीय सरकार कोई भी हथकंडा इस्तेमाल करेगी उन पॉलिटिकल राइवल्स को दबाने के लिए, धमकाने के लिए। सर, मैं 3 चीजें बताना चाहता हूं। ये पुलिस स्टेट नहीं है, भारत को गौरव है अपनी डेमोक्रेसी पर, और न सिर्फ भारत को गौरव है, पूरे विश्व को गौरव। पूरे विश्व में भारत की मिसाल दी जाती कि ये कोई दूसरे हमारे नेबर पाकिस्तान की तरह स्टेट नहीं है कि जहां किसी के साथ भी कोई किसी को अंदर डालेगा, जनरल अंदर डालेगा, प्राइम मिनिस्टर को, मिनिस्टर को। तो लेकिन किस तरह का इस तरह का वातावरण, Why you are making? Why you trouble him? You sit down. Why are you troubling your leader? Why are you obstructing your leader? I will take care of them. Sit down. Almandarao, you sit down. Why do you obstruct your leader? Javadekar, please. Javadekar, let him complete. This is how a minister would do. Satyavrat Chaturvedi. I will just sit down. I will just take 1 minute. मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी आए और ये बता दें, हमने ये पहली दफा नहीं, आज तो राहुल गांधी जी का इशू आया था इसी हाउस में, पिछले साल भी ये आया था कि इवन मंत्रियों के टेलीफोन टेप होते हैं, इस तरह के लोगों के टेप होते हैं। इस तरह के माहौल में कैसे रहें सर? तकरीबन पिछले अगस्त सितंबर से देश का माहौल बदल गया है। रिलीजियस लेवल पे एक्टिविटीज कम हो गई हैं, उन पे दबाव आ रहा है,
हम देख रहे हैं रोज नित नए, दिल्ली से लेकर अब बाकी जगहों पर नन्स के साथ क्या हो रहा है। रिलीजियस फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम कम होती रह रही है, अब पॉलिटिकल फ्रीडम भी कम होती जा रही है। इस तरह का माहौल आज हो रहा है। माननीय गृह मंत्री जी आए और सदन में स्टेटमेंट दे दें, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे हमारे दूसरे सीनियर लीडर्स हों, दूसरी विपक्ष के नेता हों, उनकी जो प्रिवेसी है उस प्रिवेसी के खिलाफ है और भारत की डेमोक्रेसी के खिलाफ है। त्यागी ओके त्यागी नोटिस now listen Tyagi 267 suspension Tyagi's notice there, your notice also there, so 2 minutes I can allow, after that आप मेरे से पहले त्यागी मैंने भी दिया। त्यागी It cannot be related to only those who have submitted the notice. no but those who are given notice I have to give preference. Mr. Chaban, those who are given notice I have to give preference. In any case, those who are given notice I have to give preference. So Tyagi पहले ये तो खत्म हो जाए। Definitely those who have submitted. I have given Tyagi, please. सर नेता सदन, Take only 2 minutes. सर बात तो शुरू नहीं की, उससे पहले ही आप सर नेता सदन दुनिया की जो सबसे समृद्ध डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां से लौटे हैं। गांधी जी जब यहां गिरफ्तार होते थे प्री इंडिपेंडेंस डेज में, तो वहां के सदन में बहस होती थी कि गांधी जी को क्यों गिरफ्तार किया। सर ये जो मामला नेता प्रतिपक्ष ने उठाया है, ये पुरातन काल से खुफियागिरी चलती आ रही है, महलों के अंदर भी, दरबारों के अंदर भी। लेकिन ब्रिटिश राज के अंदर जो हमारे नेता आजादी की लड़ाई में लगे हुए थे, उनके खिलाफ एस्पाइनेज और जासूसी होती थी। उसके बाद सर 1971 के बाद हमारे और नेता सदन के जो संयुक्त नेता थे, उनके खिलाफ भी जासूसी के लंबे चौड़े किस्से सुनने को उस समय मिलते थे, खासतौर से आपातकाल के दौरान, उससे पहले भी। लेकिन सर इधर जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है, उसके बाद से ये गतिविधियां बढ़ी हैं, पॉलिटिकल लोगों पे भी और जो कॉर्पोरेट सेक्टर की वार है उसके अंदर भी। सर ये जो फॉर्मेट देखने को मिला है ये 1957 का है। पिछले सप्ताह ही हमने लगभग 100 ऐसे पुराने कानून जो कॉलोनियल रूल के थे, नेता सदन के कहने पर कमेटी के जरिए हमने खत्म किए हैं। सर मुझको जो पुलिस अधिकारियों का वक्तव्य है उस पर मुझको ऐतराज है। 2 पुलिस कमिश्नर हैं, श्री वी.के. गुप्ता जी और श्री वेद वर्मा जी। उनका मैं वक्तव्य पढ़ के सुनाता हूं कि हाउ फुलिश इज द स्टेटमेंट ऑफ द पुलिस ऑफिसर। वन सेज इट इज हाइट ऑफ आइडियोसी नेवर डन इन अवर टेन्योर। एमपीज डिटेल पार्लियामेंट सेक्रेटरीट के पास जाइए और एमपी के बारे में जो भी सूचना प्राप्त करनी है पार्लियामेंट सेक्रेटरीट से, उसका रंग कैसा है, उसके जूते कैसे, अगर सर पे नहीं लगवाने आपको तो क्या क्या करना है, ये सारे डिटेल आपको एमपी के मिल जाएंगे। उसके बाद सर वेद मरवा जी का है कि ही नेवर हर्ड ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोफॉर्मा। अब कह रहे हैं कि ये प्रोफॉर्मा लंबे समय से चला आ रहा है। सर शरद यादव जी शायद और पवार साहब सबसे सीनियर एमपी हैं, इन्होंने कितनी बार परफॉर्मा भरा है। मैं भी 9th लोकसभा से हूं, मैंने कभी परफॉर्मा नहीं भरा। सर दूसरा इसके साथ साथ कॉर्पोरेट का है। मेरा एक आपके पास लंबित है और नेता सदन के बारे में 4 साल से 3.5 साल से चल रहा है मामला। आपके ऐसे मामले प्रिविलेज के जल्दी सुलझाने चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि परसों आपने होम सेक्रेटरी और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को बुलाया। हमारे दोस्त हैं विराज राय खन्ना जी, उनका एक प्रिविलेज का मुंह रखा हुआ है। और कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग पीएसयू के जरिए, पीएसयू कैसे बर्बाद हुआ, पीएसयू बताएंगे उनके अधिकारी पैसे लेकर के कॉर्पोरेट के लोगों से तेल वहां निकल रहा है, गैस वहां निकल रही है। सर मेरा भी प्रिविलेज आपके यहाँ केजी बेसन को लेकर के पड़ा हुआ है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस पर फुल फ्लेज बहस कराई जाए। कॉर्पोरेट का एस्पाइनेज और पॉलिटिकल एस्पाइनेज फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड, जो भी है जिन जिन लोगों के नाम है इसमें, इस पर कोई कमेटी बैठाई जाए, गृह मंत्री जवाब दें, क्योंकि छोटा मामला नहीं है। इससे हमारे पूरे सदन के लोगों की जो निजता है, उसका इन्वेजन है
और ये पार्लियामेंट के प्रिविलेज का भी मामला बनता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कॉर्पोरेट के एस्पाइनेज से लेकर के पॉलिटिकल एस्पाइनेज तक, और जो ताजा मामला है वो देश की मुख्य विपक्षी दल के मुख्य नेता हैं, अगर उनको शिकायत है तो इस समृद्ध लोकतंत्र के मुल्क से आए हुए श्री अरुण जेटली साहब को इसका जवाब देना चाहिए कि कैसी परंपराएं वहां थी और आप यहां इस तरह कैसी परंपराएं डाल रहे हैं। धन्यवाद। श्री अरुण जेटली जी वांट टू स्पीक बट आफ्टर नरेश you already सभापति जी, my notice is also there. I will allow you also, but when leader of the house wants to say, I have to allow. जी, पुलिस कमिश्नर ने, पुलिस कमिश्नर दिल्ली ने मेरा नाम भी लिया। उन्होंने कहा कि नरेश अग्रवाल के भी मकान में मैंने पुलिस भेजी थी। श्रीमान, मैंने जो अपने पीए से पूछा तो मालूम हुआ आई थी, एक फार्म था। बहुत बार हम भी गए जेल, कई बार आंदोलनों में जाने को जेल मिला। वहाँ जैसा फार्म हम लोगों से भराया जाता था, शायद उसकी डुप्लीकेट कॉपी वो सीधी सीधी थी। आप भी जेल गए, हम भी जेल गए आंदोलन में, हैं? उनके कारण जेल गए? नहीं, हम उनके कारण नहीं गए। हम उनके समय संजय जी के साथ जेल ज्यादातर गए, इंदिरा जी की अरेस्ट में जेल गए। हम उस समय कांग्रेस में थे, हम उनके कारण नहीं जेल गए थे। और नरेश जी, शरद जी और त्यागी जी भी उनके कारण जेल गए थे। गए। श्रीमान, मैं नेता सदन से कहना चाहूंगा, नेता सदन, जब आप नेता प्रतिपक्ष थे, आपकी फोन के टेप का मामला उठा था, इसी सारा सदन में हम भी साथ में खड़े थे। सदन का हर व्यक्ति इस बात से चिंतित था। ये खाली यहाँ राहुल गांधी का मामला नहीं, मैं राहुल गांधी का मामला उठाने खड़ा भी नहीं हुआ हूं। मैं तो सवाल है पूरी व्यवस्था का, पूरे सदन का, सारे एमपी का। श्रीमान, मंत्रियों के फोन टेप करे जाएंगे। एक मंत्री जीन्स पहन के निकले तो उनको कहा गया कि जीन्स उतारिए। एक मंत्री जीन्स पहन के, मैं किसी मंत्री का नाम नहीं ले रहा, समझ गए जिनको कह रहे हैं, समझ गए। मेरी बात को गंभीरता से लीजिए, मेरी बात को। एक मिनट, No, please, don't obstruct, don't disturb. स्नूपिंग नहीं है तो क्या है? मंत्री जीन पहन के जा रहा है, कैसे पता लग रहा है कि मंत्री जीन पहन के जा रहा है? एक मंत्री जी बंबई में एक अपने मित्र के यहाँ खाना खाने जा रहे थे, रास्ते में उनको कहा गया आप उनके यहाँ खाना खाने नहीं जाएंगे। क्यों? कैसे पता लगा? श्रीमान, मेरा तो ये भी आरोप है, खाली स्नूपिंग नहीं हो रही है, फोन टैपिंग भी हो रही है, और खाली हम लोगों की नहीं, जो डेमोक्रेसी में बोल सकता है उसकी सबकी फोन टैपिंग हो रही है। ये कौन, किस तरफ देश जा रहा है? ये कैसी डेमोक्रेसी होगी? गुजरात मॉडल है। किसी स्टेट का पैटर्न नहीं होना चाहिए, ये देश का पैटर्न होना चाहिए। और ये एक बहुत गंभीर मामला है। नेता सदन जी, अब आपका मामला था, हम सब आपके साथ खड़े थे, इस मारे खड़े थे। व्यवस्था का प्रश्न, खाली अरुण जेटली के फोन की टेप की बात नहीं थी। टेप की बात थी कि अरुण जेटली और सबका फोन टेप होगा कि नहीं होगा। श्रीमान, वही प्रश्न आज फिर खड़ा हुआ है। 1 लाख फोन रोज टेप करे जाते हैं। आप अपराधियों के फोन टेप करिए, लेकिन आप पॉलिटिकल लोगों के फोन कैसे टेप करेंगे? ये मेरा सत्य है कि 1 लाख फोन इस देश में रोज टेप किए जाते हैं, और बिना किसी परमिशन के। श्रीमान, नियम यह है कि जब तक गृह सचिव परमिशन नहीं देगा आप फोन टेप नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ फोन टेप के लिए जिसका चाहे उसका फोन टेप हो जाए। Okay. मैं तो चाहूंगा कि नेता सदन आज इस बात को आप गंभीरता से लीजिए, दल के आधार से ऊपर उठ के। Okay. ये नहीं कि मैं इस मारे आरोप लगा रहा हूं आपकी सरकार है। मैं तो चाहता हूं व्यवस्था चाहिए, Okay, सरकार हो, चाहे आपकी हो चाहे हमारी हो, किसी की भी सरकार हो, हमारी निजता के अधिकार को चुनौती नहीं होना चाहिए, हमारे प्रिविलेज को चुनौती नहीं होनी चाहिए, और डेमोक्रेसी को चुनौती नहीं होना चाहिए। ये मेरा let him listen. No, it's not reply. It is not a reply, but leader of the house want to say something, I have to allow. It's not a reply, Baba. Why are you? I will allow you, but I have to allow the leader of the house. No, I am not saying that I will not allow you. But if leader of the house wants to say something, I have to allow. That's all what I am doing, please. Sir, proceedings in this house have a certain amount of sanctity. And therefore, unless we are sure of our facts, that an incident of somebody wearing jeans being asked not to wear jeans, I don't think we should raise it, because gossip
cannot be treated as facts and given sanctity so as to be repeated in this house. That's all I'll request, Naresh ji. मैं आजाद साहब से सिर्फ इसको पॉलिटिकल मामला बनाया जाए तो उसका मैं पॉलिटिकल भी जवाब दे सकता हूं। इस दुनिया में कभी नहीं हुआ इस देश में कि इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर अपने कमरे की तलाशी करवाएं कि क्या मेरे कमरे के ऊपर बगिंग तो नहीं हो रही किसी दूसरे मंत्रालय द्वारा। आपकी सरकार के दौरान यह भी हो चुका है और इसलिए इन विषयों पर विषय उठाने से पहले सारे तथ्य आप लोग समझ लें। द इशू यू हैव रेज्ड टुडे is making a mountain of what is not even a molehill. And I'll make good this fact. 1957 से लेकर प्रोटेक्टेड पर्सन्स की दिल्ली पुलिस प्रोफाइलिंग करती रही है। 1987 में कोई हमारी सरकार नहीं थी, आपकी सरकार थी, एक परफॉर्मा बना और स्नूपिंग वो होती है जो चुपचाप किसी पे नजर रखी जाए। किसी के घर जाकर उस व्यक्ति से या उसके सेक्रेटरी से कहा जाए ये फॉर्म की डिटेल्स दो, वो स्नूपिंग नहीं होती, वो डिटेल इंफॉर्मेशन लेते हैं। दिस प्रैक्टिस स्टार्टेड ड्यूरिंग द कांग्रेस गवर्नमेंट इन 1987। आप और मैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स नहीं हैं और न ही हम बनने का प्रयास करें। जूते के साइज का क्या रेलेवेंस है? इस देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री का जब असैसिनेशन हुआ था तो जूते की वजह से उनके शरीर का आइडेंटिफिकेशन किया गया था। इसलिए हम अपनी संसद हैं, राजनीतिक हैं, इसलिए हम अपने आप को उस तक कन्फाइन रखें। सिक्योरिटी प्रोफाइलिंग के लिए जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं उनको जो जानकारी चाहिए होती है ये उनके ऊपर छोड़ दें। इसलिए जूते के साइज का भी रेलेवेंस हो सकता है सिक्योरिटी में। 1999 में उस परफॉर्मा को बदला गया और बदला हुआ परफॉर्मा मेरे पास है। तब से लेकर आज तक ये एनडीए यूपीए का प्रश्न नहीं है, हर प्रमुख व्यक्ति की दिल्ली पुलिस उनके घर पर जाकर उनसे या उनके स्टाफ से प्रोफाइलिंग करती है। आज 526 लोग, और ये लिटियंस दिल्ली की सिक्योरिटी की दृष्टि से है। मैंने इसको वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि यह समाचार पत्रों में था कि आप रेस करेंगे, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री एच.डी. देवेगौड़ा, श्री आई.के. गुजराल जी अब नहीं है दुनिया में, उनकी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, श्री अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अटल जी की जो प्रोफाइलिंग का फॉर्म है वो आखिरी फॉर्म 9 जून 2011 को दिल्ली पुलिस ने भरवाया उनके घर जाकर। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा 1998 में उनका प्रोफाइलिंग फॉर्म हुआ और क्योंकि इंपॉर्टेंट वीआईपीज हैं, सोनिया जी का अक्टूबर 2004 यूपीए की सरकार में हुआ, 2009 में हुआ, 2010 में हुआ, 2011 में हुआ, 2012 में हुआ। माननीय राष्ट्रपति जी क्योंकि सक्रिय राजनीति में थे, 2001, 2007, 2008, 2009 और 2012 में हुआ। अडवाणी जी, सुषमा जी, अहमद भाई, मेरा स्वयं का और हम में से यहां बैठे हुए जितने लोग, सीताराम येचुरी जी, शरद यादव जी, इन सब के जो लिटियंस दिल्ली में ऑपरेट करते हैं और जो प्रमुख लोग हैं उनका हर साल 2 साल के बाद उसको वो रिव्यू करते हैं और इसलिए इस रिव्यूइंग में उनकी नॉर्मल एक्टिविटीज क्या हैं, वो सैर करने कहां पर जाते हैं, उनकी कंपनी क्या है, कपड़े क्या पहनते हैं, कि किसी इमरजेंसी में इन विषयों की जरूरत हो सकती है, ये आंखों का रंग कैसा है, ये पुलिस की सिक्योरिटी प्रोफाइलिंग के लिए वो इकट्ठा करते हैं। ये कोई पिछले 14 मार्च को शुरू नहीं हुआ राहुल जी के संबंध में, ये 1987 से लिखित रूप में चल रहा है, 99 से ये प्रेजेंट परफॉर्मा चल रहा है और आज भी 526 लोगों का ये प्रेजेंट परफॉर्मा दिल्ली पुलिस के पास है। राहुल जी के यहां जब गए हैं उससे कुछ समय पहले नरेश अग्रवाल जी के यहां भी जाकर उन्होंने ये डिटेल ली। जिस दिन राहुल जी के यहां गए उस दिन बीजेपी के एक नए सांसद हैं दूसरे सदन से, रमेश विधुरी, उनके घर से मिली। तो इसलिए ये
ट्रांसपेरेंट सिक्योरिटी प्रोफाइलिंग दिल्ली पुलिस का स्पेशल ब्रांच करता है। इसका स्नूपिंग से, जासूसी से कोई ताल्लुक नहीं है। जासूसी के लिए जाना हो तो उनके घर जाकर उनके स्टाफ से पूछेंगे क्या? ये जासूसी है क्या? वो तो स्नूपिंग होती है। इसलिए हम सांसद के रूप में, राजनीतिक नेता के रूप में जनसेवा करें, सिक्योरिटी एक्सपर्ट का रूप धारण ना करें, क्योंकि ये हमारी विशेषज्ञता नहीं है। Okay, I am not allowing it. Okay, what do you want to say? Allow to. माननीय उपसभापति महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने और अन्य दल के हमारे साथी नेताओं ने जो विषय उठाया वो गंभीर है। नेता सदन ने सरकार की तरफ से जानकारी दी और ये कहा कि ये पहले से प्रोफाइलिंग होती है, सुरक्षा एजेंसीज ये जानकारी लेती हैं। प्रश्न ये पैदा होता है समय का, व्यक्ति का, और उससे आगे बढ़ के जो बात नरेश अग्रवाल जी ने, अन्य साथियों ने सदन में कही, हैरानी की भी बात कि या जो पहले के जो 2 दिल्ली के पुलिस कमिश्नर्स हैं उनकी स्मरण शक्ति पे भी हमको शंका नहीं होनी चाहिए जो उन्होंने कहा है। दूसरा, जो संसद सदस्य 11 बरस से हो उसके माता का और पिता का नाम जानना जो सारे देश और दुनिया को पता है, वो भी कुछ अजीबो गरीब बात लगती है। ये देखिए, आप बीच में 1 मिनट, मैं प्लीज कैन आई सर कट इट शॉर्ट? कैन आई कट इट शॉर्ट? दिस इज नॉट इन द लास्ट 8 months दैट इट हैज स्टार्टेड। मैं नेता प्रतिपक्ष को निमंत्रण देता हूं, पुलिस का रिकॉर्ड मंगवाकर 526 फॉर्म्स इनको दिखला देता हूं जो यूपीए सरकार के दौरान भरे गए। विल दैट पुट एन एंड टू दिस इशू? I think इससे बढ़ के now we can. नहीं, इससे बढ़ के बात है। I think मैं इससे बात से थोड़ा I think we can now हट के conclude. बात कर रहा हूं। We can conclude. देखिए, I think we can. आपकी No, अनुमति this से issue बोल will रहा हूं। conclude. मैं आपकी अनुमति This से is बोल रहा हूं। 267. मेरी बात I am going to आप conclude बीच में- देखिए, उपसभापति महोदय, Your notice is not मैं there. सरकार से ये जानना चाहता हूं, You are not given. सरकार से मैं जानना चाहता हूं That I will call. कि एनसीपीपी क्या है। So दूसरी I बात am. है Let me कि dispose. इस देश के अंदर Now it's मैंने नाम over. कहा है It's over. एनसीपीपी, No, this ये कौन issue सी I- एजेंसी है? सरकार और This नेता issue सदन, is over. सरकार और नेता सदन Okay. उसको भी देख ले। पर एक गंभीर बात है जो मैंने अभी बात नहीं Okay. कही। Now I am देखिए, therefore सभापति महोदय, मैंने ये बात अभी Having- मैं कुछ बात कहने जा रहा हूं और गंभीर बात है, वो सदन सुन ले। okay agreed. मैंने बात खत्म नहीं करी उस पे। प्रश्न ये है, लेकिन खत्म करो। नेता सदन और सरकार इस बात को गौर से सुने कि यहां हमारे देश की जो एजेंसीज, No. कई मशीन्स, जो नई टेक्नोलॉजी है देश में कुछ साल Then पहले। for that you have given another notice. नो, दिस इज Now. This is No. regarding that. Yes. This notice is regarding that. My No, notice. this is- Sir, it is. this is regarding- 267. No, yes, 267. Let me say. What I am saying, that few years ago, it was brought to the notice of the government, and I was a minister responsible who noticed it in 2009 that certain entities, private entities under OGL were importing listening devices where somebody can park it even outside Prime Minister's office and listen to conversations inside. Or a kilometer No, away from that your is house. the general issue, you give notice. Sir, no, it connects. It is connected. And I'll tell you how it is connected. No, I am going to I pull will it tell out. you how it is connected. I have to go to the other A decision subject. was made, a decision was taken. No, a decision was taken that this was to be banned. It was banned. Then the listing Okay. of these machines was to be done. You are generalizing It was it, brought please, to a don't do notice that. some state governments Now, had the also rule, imported see, things which were not retrieved. rule, Now it is our information notice that under this rule, government the is sub- tapping the phones of Okay. senior political leaders, judges, Yes, business Anand leaders. Sharma, and please they have conclude. outsourced this job. Anand to Sharma, I am private not allowing agencies your discussion. who are in I'll give you possession the next of these subject. listening devices. I'll give you next Therefore, subject. there has Not to be this. an inquiry. No, no. Inquiry monitored No, by no, okay. Supreme Court. Nothing short of I that heard- about the snooping. I heard surveillance, arguments these are from all both sides. tactics.
The notice under machines were used 267 is ruled out. rampantly I am in not the state. following. Next, These notice under machines were used, 267, and I have no hesitation that is ruled to say, out. in the I am state of not allowing. Gujarat. Now, Sri D. Raja, rule 267 D. Raja. 267 आप नियम देखें 267 I ruled out. आप नियम देख लीजिए That is ruled out. पॉइंट ऑफ ऑर्डर में हाँ, 267 नियम आप देख लीजिए हाँ, या तो आप शुरू में रिजेक्ट कर देते हैं जब आपने हाँ, I have heard and rejected. नहीं, जब आपने चर्चा I have heard and rejected. जब चर्चा शुरू करा दी I have heard and rejected. हाउस की सहमत लेनी पड़ेगी जब आपने चर्चा शुरू करा दी तो चर्चा शुरू होने के बाद नहीं, ये हाउस की that सहमत चर्चा was, नहीं, no, आपने no. चर्चा शुरू करा दी Charcha was only to enable me to take a correct decision. now You see, it is up to house No, let not me- up to you let me- ये अब तो हाउस के ऊपर है अब जरा कि बैठिए। सदन तय करे आप जरा बैठिए सुनिए see yes Naresh Agarwal is correct. I am not refuting what you said. What I am saying is 267 notice was given by Sri Ghulam Nabi Assa, Sri Anand Sharma and Satyavada Chaturvedi on this subject, on the same subject 267 Sri Naresh Agarwal and Sri Ram Gopal Yadav on the same subject, Sri K.C. Tyagi on the same subject. This was the notice I received. For helping me to take a decision, I wanted to hear those who gave the notice, and also let me say, yes, but लेकिन थोड़ा बैठिए, say I heard both sides and I have taken a decision. The notice is ruled out. I am calling the next notice D. Raja for 267 on the question of rape of a nun in West Bengal. D. Raja. The discussion started on the No discussion started. I was only listening. I was only listening to those who gave notice. Then No discussion started. in that case, response of Yes, leader of not required at all. no, yes, leader of the house. Make you Yes, understand whether it should to go correct, to take a proper decision. I want to hear the treasury bench also. Jaitleyji's response is not required. I have taken the decision. That is yours is 0 over. Sit down. Yeah. No, I am ruling out 267, not yours. So, yes, I heard those who gave. No, don't question my ruling. By your own argument. Don't question my ruling. Don't. Yes, I have to hear the treasury benches. Otherwise, I will take decision. To take a correct decision, I have. Arey Khanna ji बैठिए. Why are you doing this? Arey I will deal. आप लोग बैठिए. And you yourself. Tapan ji, to take a correct decision, I have to hear both sides. I am not allowing anybody other than those who gave notice. I called those who gave notice and I heard them. I heard the government reaction from the leader of the house and I have ruled out. That is ruling is final. Now Sri D. Raja. No, I am not allowing you. I am not allowing you. Sorry, sir. Anand Sharma, I am not allowed you. Only Sri D. Raja. Tapan ji, it is not a discussion. You give notice. You give. D. Raja. D. Raja. I think I have a right to respond. I have a right to respond. Senior officers, they want to convert India into a police state. They want to create some environment of fear, intimidation. They are taking away. What? I have ruled it out. I heard both sides and decided. I heard both sides and decided. So now D. Raja. D. Raja. D. Raja. D. Raja. Sir, Walk out. sir, I have given a notice. That's why I called you. Yes, yes. The leader of the house is sitting here.
with great pain and agony, I raise this issue. A few days back, a 70-year-old Christian nun was gang raped in the state of West Bengal. And now it is reported a church which is under construction has been demolished in the state of Haryana. There is increase in the attack on Christian and other communities in the country. It is very shocking. It is very shocking. The right-wing extremist forces have become so aggressive and offensive. And sir, a few days back, one of your leaders, a senior leader of your party, went to Guwahati, made a statement, God lives only in Hindu temples, He doesn't live in other places of worship. What is happening with your party, with your government? What is happening in the country? If this continues, can we safeguard the secular fabric of our nation, the secular fabric of our constitution? If that is demolished, what will happen to India and India's future? Sir, it is a serious matter. I want the House to suspend the business and discuss this serious matter with all seriousness. Sir, it concerns you, it concerns me, it concerns him, it concerns all citizens of this country, and it concerns the nation and its future, sir. With great agony, I am raising this issue. Okay. Generally, I don't want the business to be suspended. हम सभी लोग इससे बहुत गंभीर मामला है सर, बहुत गंभीर मामला है। प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि ऐसा बयान और I think the government can किस तरह के बयान दिल्ली में हुआ? Okay, the government, what the government have, let us hear what the government have to say. Let us hear what the government have to say. Please take your seat. Let us hear what the government have to say. Raja, sit down. Let us hear what the government has to say. सभापति जी, Let us सभापति hear. जी, निश्चित तौर से जो माननीय Let us सदस्यों ने hear the government. मुद्दा उठाया है, Let us hear what the government. और महत्वपूर्ण भी है। Ansari ji, बैठिए. सरकार Let us hear what the government हमारी has to say. सरकार No, let us hear what government has to say. देश के सौहार्द के लिए कमिटेड है। बाबा, हमारी सरकार sit down. देश में धार्मिक सहिष्णुता Now का please माहौल listen to the minister. और इस तरह के Please किसी listen to भी the minister. हरकत को, जो भी किसी Please भी listen to the धार्मिक minister. अधिकारों या धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला होता है, हम उसके खिलाफ हैं। Please और listen to ऐसे the लोगों के minister. खिलाफ जिन राज्यों में भी होता हो, उन राज्य की सरकारों Please को listen to the कड़े कदम minister. उठाना चाहिए। Now, Raja, why don't you listen to the minister you raised? No, please. Okay, it happened in West Bengal, you can say after that minister. Why don't you sit down? Sir, we are in agreement with the Raja. Let there be short duration discussion after proper. Give notice, yes. Yes. We'll discuss. Yeah, you give notice. सर, हम सहमत Chavan हैं। Sen, you give notice. यस सर, सर Please don't give assurance. शार्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए अगर माननीय सदस्य He देते said he will हैं, give notice. तो सरकार सहमत है, कोई दिक्कत नहीं है। It's all right. So what do I do? Give the notice, no problem. हम तैयार हैं। Nakwidi, now let us listen to the minister. Let us listen to the government. Sit down first. What action? See, I would like to know, and the House want to know what action government would take. So allow him to say that. See, don't defeat me like this. Sit down. Sit down. I am only saying, I say,
you raised a very important issue. This house itself, this kind of happening, same burning of charge, very abusive language by a minister, or divisive approach, all these again and again, minister, including Prime Minister, assured this must not repeat, it will be taken care of, and next day itself, sometimes same day evening, such inflammatory speeches, statements are being made in order to divide the people on religious, caste and different Okay, now you listen to the by minister. the people from the government, same political combined and their other wing organizations. Every day is being made. What is the sanctity of the assurances being made even by the Prime Minister now? Okay, that's all. After Now these the things minister, are happening. nothing else will go on record. Only what minister says. Nothing else will go on record. Ansari is not going on record. Why to? Record में नहीं जाते आप बैठे. Only what minister. सभापति महोदय. Listen to the minister. Nothing else will go on record. माननीय सदस्यों ने record में नहीं जाते बैठे. माननीय सदस्यों ने Let us listen to the minister. धार्मिक सहिष्णुता और सौहार्द देश में कायम होना चाहिए, इसमें किसी तरह का कोई भी किसी को शक नहीं है। और मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, उन सभी की सुरक्षा और उन सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अरे सलीम बैठो, धार्मिक स्वतंत्रता है, सभी धर्म, ये देश जो है हमारा सभी धर्मों को मानने वाले लोगों का देश है। इसलिए जिन राज्यों में ये घटनाएं हो रही हैं, उन राज्य की सरकारों को ऐसे लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाने चाहिए। जहां तक माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिया है कि इस पे शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन अगर नोटिस देते हैं तो हम इस पे चर्चा के लिए तैयार हैं। All right. Okay. Now see the Raja. See Mr. Naqvi. Only the House wants strong action to be taken by the government. See now I'm not allowing it. House wants strong action to be taken by government. That's all. Take strong action and come back. Now, so the notice is ruled out. Now, zero over. For Sri Nasir Ahmad Lave. Sri Nasir Ahmad Lave. Sir, हमारे जम्मू कश्मीर के के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम बनाई थी जो 2010 में इम्प्लीमेंट हो गई। और उसके बाद हमारे जो बच्चे हैं जम्मू कश्मीर स्टेट के, वो मुख्तलिफ कॉलेजों में, मुल्क के मुख्तलिफ कॉलेजों में तालीम हासिल करने के लिए गए थे, लेकिन आज तक उनका स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है क्योंकि वो गरीब लोग हैं। उनको स्कॉलरशिप के बिना पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम बनाई थी जिसमें उसमें रखा था 12,000 करोड़ मुश्किल, लेकिन आज तक 2013 में 3,747 लड़के आए, उसके बाद 2014 में 1,000 लड़के आ गए, लेकिन पर ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखा था जिसमें एक्सपोर्ट से 5,000 लड़कों को स्कॉलरशिप दिया जाएगा टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थ्रू आउट इंडिया। लेकिन आज वो लड़के हमारे दर बदर के ठोकरे खा रहे हैं, सारे दिल्ली में घूम रहे हैं, पंजाब में घूम रहे हैं, छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं। उनको कॉलेजों से निकाल कर हमारी बच्चियां जो है, जो हमारे नौजवान लड़के पढ़ते हैं, उनको वहां से निकाल के वो बाहर सड़क पर बेचारे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। उनके पास किराए भी नहीं है घर जाने के लिए। मैंने HRD मिनिस्टर से मैडम से मैंने लिखी थी एक चिट्ठी 27 फरवरी को, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से HRD मिनिस्टर को ये बावर करना चाहता हूं कि हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल वो खत्म हो रहा है, उनकी तालीम मुतासिर हो रही, उनके लिए कुछ किया जाए आपके बात से। थैंक यू, धन्यवाद। श्री तपन कुमार सन, श्री तपन, यस यू कैन कहना चाहते या सर, जो माननीय सदस्य ने उठाई बात है पूरे या आई विल कॉल यू। ओके, तो सर ये जो कश्मीर के MP साहब हैं, उन्होंने जो सवाल उठाया है ये बहुत दिक्कत है। यानी देश भर में कश्मीर के लोगों को इस देश के एक बड़ी समस्या, उसका इंटीग्रेशन करने के लिए ये एक पहल की गई थी, लेकिन उन बच्चों को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती, उनके साथ हिकारत के साथ व्यवहार होता है, उनको मारा पीटा जाता है। इसलिए ये बहुत ही गंभीर बात है। सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। ये लड़कों की बहुत दिक्कत हो रही है। श्री तपन कुमार सन, सभापति जी
I called him. शरद जी की बात का समर्थन करने की अच्छा, और कश्मीर को सेंसिटिव नहीं लेना चाहिए। अगर कश्मीर के बच्चों के मन में भावना आई तो ये राष्ट्र के लिए बहुत अच्छी भावना नहीं होगी। अगर ये नीति आपकी पूरी राष्ट्र के लिए है तो और खराब है। इस बारे में चाहता हूँ कम से कम इसको गंभीरता से Okay. लें और This issue is important. उस पर कार्रवाई करें। I agree. Issue is important. Government should take note of it and take action. Sri Tapan Kumar Sen. Tapan Kumar Sen. Yes, yes. Yeah. Started. It's gone. Yeah, now it is starting. Sir, I stand to raise attention of the House to a very serious issue. I wish HRD Minister should have been here. She was here only. It is my misfortune that I could not make him speak before before her. The problem issue is that around a few lakhs of para-teachers who are not being paid full wages of the teacher are running the school education system throughout the country. And their livelihood, their employment has been put to serious threat. They are under central government or state government? No, they are under state governments. They are employed in the school education system with less wages, less salary to supplement the regular teachers in the school, and their number is a couple of lakhs. In my state alone, 53,000 para-teachers are there. Now, their job is going to end by 31st of March because as per stipulation of the Right to Education Act, they are to be covered by diploma in education training, delayed training, but that is not taking place for no fault of theirs. Teachers cannot train themselves. The arrangement is to be made by their respective governments, and central government has also a role, has also got a role to play. But after 31st March, if they are not covered by that training, they are going to lose their job. It is a couple of lakhs. And again I repeat, in my state it is 53,000. They are agitating, they are staying on hunger strike. I urge that since today and 31st March, the difference is much less. It is, even God cannot ensure that by this time the whole thing can be completed. So I urge the intervention of the central government. That's why I am raising it here. It is a question of bread and butter of a few lakhs who at the same time have been holding the very foundation of the school education system. If they are off, no government can appoint teacher on a short span to keep the wheel of education on in the different schools. I am fortunate, Minister has just peeped in and gone. Sorry, I could not make her here. But I am saying it is a very serious issue. And they are going to lose their job. So I urge upon the government to do something so that that period is extended, their continuity of their employment continues, school education also should not suffer, and at the same time, state government and central government together must make an arrangement that within a reasonably short time, they are covered by that delayed training process. No, if they are otherwise they will lose their job. If they are a few lakhs and if they are terminated, how government will replace? How government will make new recruitment? They cannot, because They they cannot. have that has got Okay. also certain procedure. Okay. So, and also they should, who are working for more than 20, Naqvi ji, 25 years, Please they convey the cannot lose feeling their to the job. minister. You cannot just Okay, throw okay. them out of the street. He will Who convey have to been the working minister. since last Sri 20, Dr. 25 Bhushan years. Langde. Dr. Bhushan Langde. Dr. Bhushan Langde. Yeah. On this, Tabansan. Okay. Tabansan issue, many honorable members associate. Please note down. उपसभापति महोदय, मैं गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के संबंध से कुछ तथ्य रखना चाह रहा हूं आपके समक्ष। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर को जिस उद्देश्य से केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तन किया गया है, यह उद्देश्य पूरा होता नहीं दिख रहा है। उल्टा अनियमितता और भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है। केंद्र से करोड़ों रुपया की राशि प्रदान की गई है, परंतु किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। छात्र छात्राओं के अध्ययन हेतु कमरों भवनों का निर्माण तक नहीं कराया जा सका है। यह जो है, यह कम से कम साल भर के पहले की बात है ये, और ये आज भी वही स्थिति है जो उसको सुधारने की ज़रूरत है।
आज विश्वविद्यालय का क्षेत्रफल 8,800 एकड़ है, फिर भी प्राध्यापकों के लिए आवास व्यवस्था, छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण न करा पाना चिंता का विषय है। केंद्र ने विश्वविद्यालय को वर्ष 2009 से 2014 तक करोड़ों रुपया अनुदान राशि सर्वांगीण विकास हेतु स्वीकृत की थी, परंतु अधूरी अधोसंरचना के बीच अधिकतम राशि लगभग 90 करोड़ से ज़्यादा न्यूक्लियर एक्सेलेटर नामक परियोजना पर खर्च कर दी गई, जो कि किसी भी नए विश्वविद्यालय के सर्वांगीण विकास को रोककर व्यय करना न्यायोचित नहीं है। यूजीसी के पत्र क्रमांक F52 दिनांक 15 सितंबर 2010 का गंभीर रूप से दुरुपयोग होने की जानकारी है, जिसके परिणाम स्वरूप अनेकों नियमित शिक्षकों को पदमुक्त किया गया एवं अन्य की नौकरी खतरे में है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के उन्नयन उपरांत 2009 से 2014 के मध्य लगभग 60 से अधिक अनियमित शिक्षकगण एवं कर्मचारियों का निलंबन अथवा बर्खास्तगी की कार्यवाही, 109 रेगुलर कर्मचारियों का पुनः दैनिक वेतन भोगीकरण की कार्यवाही एवं 36 कर्मचारियों के साथ नियमितीकरण का खिलवाड़ एवं उसके तथार्थ शिक्षकों के साथ खिलवाड़ गैर कानूनी रूप से पिछले समय किया गया। केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने से पूर्व इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत 150 से अधिक महाविद्यालय आते थे, परंतु केंद्रीय विश्वविद्यालय की मान्यता मिलने के बाद महाविद्यालयों की संख्या बढ़ाने के बजाय अधिकांश महाविद्यालयों को अलग कर दिया गया, जो इस पिछड़े क्षेत्र के छात्र छात्राओं के साथ अन्याय है। टाइम और बैठिए। श्री हनुमंत राव, नोट पर्सन। श्री डेरेक ओब्रायन। Okay, yes. Now, Sir, after Nirbhaya, all of us in this house and in this nation thought it cannot get any worse. We can't be any more brutal than what those men were 2 years ago. But unfortunately, day before yesterday, in Ranaghat in Bengal, we saw another shameless act of brutality. This is not an issue where anyone wants to do any politics with it. That's why I thought it would be proper to give a notice and bring this issue up here in the Rajya Sabha. Hanumanta Rao ji was actually supposed to speak and he had prepared something he wanted to say. If he is here, I don't mind giving up my time to him to speak. But since his party is not here and my name was second, please come back. Yeah, you can say. I'll carry on. Carry on. I don't mind. Carry on. Sir, no sir, it's very sad, and frankly, all a government, a state government can do at this stage is to show some swift action, to get some swift action done, and within a few hours of this happening, a CID probe has been ordered and 7 are detained. Are the culprits arrested? I will not indulge in politics. Are the culprits arrested? I will not indulge. Sorry? People have been arrested. 7 have been detained. Sir, I will not compare one incident to the other. No, don't do that. And say in one there was speed and swiftness, in the other one was slow. This is not the occasion to do it, sir. I think the issue is bigger. And for all you know, it may have been a dacoity in the straight sense, so I don't want to come to any conclusions. But I think the issue is bigger, sir. The issue is one of women's rights. The issue of one is the safety of people who run these minority institutions. The issue is one of respecting our mothers, our sisters, and making this India a safer place to live. So at some point we have to understand that both rapists and their victims are us. Both rapists and their victims are us. Because sometimes the way we act in these cases, that itself is shameless. Sometimes the way we speak, and I don't think, sir, this is a women's issue. Because whenever something like this rape happens, we have women movement. It's a men's issue, sir. Now it's time for question hour. Time over, question hour time.